Namaste friends, let us discuss the different cases of potential energy of a system of charges placed in external field. In the previous lectures we studied potential energy of system of charges, but now we are going to discuss about potential energy of system of charges in external field. अब चार्जेस पहले से जो फील्ड है उसके अंदर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी electric potential energy of system of charges in external electric field. Electric potential energy of system of charges in electric field. First condition, potential energy of a single charge, मतलब system containing single charge in external electric field. So remember that even if source which is going to produce electric field, it is known or unknown, we should know either electric field or potential at particular point. Then we can determine potential energy. Suppose this is the three-dimensional field. At this particular point, we want to install charge plus Q. Already at the point there exists potential V. So this is the position vector R. So how can we find potential energy? You know very well by definition of electric potential. What is the definition of electric potential? Work done to bring unit positive charge from infinity to the given location or to the given point. Okay? So by definition of electric potential, V, so this V equal to work done per net charge, work done W, the charge taken from infinity, it may be plus Q0 or we can write Q. Okay? So therefore work done equal to work W equal to V into Q. This work done is stored in the form of potential energy. Therefore, potential energy U equal to work done W. So what is W? V into Q. So V into Q. Okay, so this is the expression for potential energy of single charge placed in external field. So therefore, electric potential energy is equal to electric potential into charge. Electric potential multiplied by the charge which is placed at that point. Okay, so this is the expression for this first condition. Let us consider second one. Now consider second case. Potential energy of a two charge system in external field. Now once again consider this is the three-dimensional region, z-axis, x-axis, y-axis.
Now consider 2 points. At this point, charge Q1 is placed. Here charge Q2 is placed, both are positive. First charge is having position vector R1, second having position vector R2. At the location of first charge there exists suppose potential V1. Already there exists potential because field is already present. At the position of Q2 suppose there exists potential V2. Now, by definition of potential energy, work done to assemble the charges by bringing them from infinity to their present location. That is the potential energy. Okay? Now, work done to bring first charge. That is the potential energy to install the first charge. Work done to install first charge. This is W1 equal to, what is the definition? According to potential definition, work done is equal to charge into potential. Which charge? Q1 is taken. Okay? Potential at that point is V1. So work done is equal to charge into potential, or you can say potential at this point V1 into the charge deposited is Q1. So potential V1 into charge Q1. This is the work done to install first charge. Now, work done to install second charge. Work done to install second. What is the formula? Work done to install second is, this charge is taken at the point where potential is V2. So potential V2, the charge taken is Q2. Work done is equal to charge into potential. But don't take this potential. At this point there is a different value of potential. It is V2. So V2 into that charge. But again, some additional work is also done due to effect of this positive at this position. When Q2 charge is taken from infinity to this location, this is going to experience repulsive force exerted by this. So this is going to repel this. Against that repulsive force, we should have to deposit this. We should have to perform work. Okay, so this distance between first and two denoted by R12. Okay, position vector R12, again distance is R12. So this is having some repulsive force over the Q2. That's why some additional work is again done. So what is that work done? That work done is potential of Q1 at position Q2. Okay. Another work is potential of Q1, okay, at the position of Q2 multiplied by charge Q2 multiplied by charge Q2. Okay, तो V2 Q2 प्लस, ये समझ गए? फिर से क्या, वर्क डन पोटेंशियल इनटू चार्ज, but at this point this is going to produce some potential. That potential into the charge taken, that is Q2. What is that potential? 1 upon 4 pi epsilon 0. You know very well, potential due to point charge. 1 upon 4 pi epsilon 0 into that charge Q1 to charge Q1 upon distance of this from the charge Q1. That distance R12. Don't use vector. Potential is scalar quantity. Into the charge taken is Q2. So this formula is now becoming W2 equal to V2 Q2 plus
Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon 0 multiplied by distance between first and second। तो ये है सेकंड को डिपॉजिट करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए वर्क, ये फर्स्ट को इंस्टॉल करने के लिए वर्क, दोनों के एडिशन करते हैं तो टोटल वर्क। अब यहाँ से इधर कंटिन्यू, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी symbol, let us write capital U, potential energy U equal to total work that is W1 plus W2, so W1 V1 Q1 W2 V2 Q2 plus Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 R12। So this is the potential energy of system containing two charges in external field। ओके, जिस फील्ड में पहले से इस पॉइंट को पोटेंशियल गिवन है, इस पॉइंट को V2 है। दिस इज सेकंड केस। नाउ कंसीडर थर्ड वन। नाउ कंसीडर द थर्ड केस, potential energy of electric dipole placed in uniform external electric field। ये पैरेलल इक्विस फेस स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर ये डाइपोल है। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क का फॉर्मूला पहले वो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको लर्न नहीं तो लेटेस्ट डिराइव। अब ये समझ लो, ये एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस करने वाली इधर कोई ऐसे ही पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो, ठीक है, ऐसे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इधर कोई ऐसी लॉन्ग निगेटिवली चार्ज प्लेट। तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, कुछ एंगल बना के रखा है थीटा। निगेटिव इसकी ओर अट्रैक्ट होगा तो यह आ जाएगा फोर्स, पॉजिटिव इसकी ओर अट्रैक्ट होने वाला यह आएगा फोर्स। मतलब पॉजिटिव की ओर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स, नेगेटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस द फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेगेटिव चार्ज उसके अगेंस्ट फोर्स फील कर रहा है, पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस, these two forces equal and opposite form a couple, couple produces rotation। लेकिन फिर वैल्यू EQ क्यों लिखा है? बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या बन गया? E इंटू क्यू। इसलिए इधर भी लिखा है EQ, इधर भी लिखा है EQ। प्लस माइनस दे सकते हैं, तो प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए रहने वाले। मैग्नीट्यूड इसका भी EQ और ये भी EQ। फोर्स ऑन दिस EQ, फोर्स ऑन दिस EQ। These two equal and opposite forces acting at two different points form couple, and that couple is going to produce rotation in this electric dipole। ठीक है, तो कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन, दैट इज द टॉर्क। उस कपल जो रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है उसका जो इफेक्ट है उसे मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ द कपल टू प्रोड्यूस रोटेशन, मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल को हम बोलते हैं टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क क्या आएगा फिर? वन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two forces, between two forces। वन फोर्स कौन सा? ये और ये दोनों सेम है, उसमें से एक फोर्स, उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन इसके लिए और ये दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन।
तो दोनों में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज डायपोल लाइन, ये राइट एंगल है, तो ये अपोजिट साइड आ रहा है थीटा की, क्योंकि ये भी थीटा है, दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो थीटा इज द एंगल मेड बाय axis of dipole, or we can say electric dipole moment. Electric dipole moment makes an angle theta with external field E, या फिर axis makes an angle theta with external field E. तो थीटा के अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड होता है हाइपोटेन्यूस टॉइसियल इनटू साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया टॉइसियल साइन थीटा, Q into 2L sin theta. But remember that charge into dipole length twice L. This is the dipole moment P. ठीक है, टॉर्क के लिए सिंबल टाउ, दिस टाउ इक्वल टू P into E into sin theta. So this is the expression for torque. Torque acting on this dipole placed at an angle theta with the field. तो ये बन गया टॉर्क का फॉर्मूला. वी शुड हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू डिराइव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल. अब ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली यूज करना है, इसलिए मैं अभी इसे रब करता हूँ. टू नोट डाउन दिस फॉर्मूला, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस. अब ये डायरेक्ट यूज करना है. तो here let theta equal to angle between dipole moment P and electric intensity E. This is the electric intensity. Dipole moment P and electric intensity E. ठीक है, ये थीटा एंगल है. Force on each charge of the dipole. By definition of electric intensity. Force on each charge. F equal to EQ. Okay. Toy cell is the dipole length. Toy cell क्या है dipole length? Toy cell equal to dipole length. Torque on dipole is PE sin theta, where P equal to electric dipole moment. ठीक है. Now suppose that by applying external torque, ये torque due to field है, ये टॉर्क रोटेट कर रहा है किसे, डायपोल को, उसके अगेंस्ट हमें टॉर्क अप्लाई करना है. अब देखो थीटा की डायरेक्शन क्या है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मानते हैं तो इस तरह से ऐसा अपवर्ड आने वाला है, आउटवर्ड, और उसी डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं. तो अप्लाई द एक्सटर्नल टॉर्क इन ऑर्डर टू डिफ्लेक्ट द डायपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा. तो सम वर्क इज डन, क्योंकि जो टॉर्क ड्यू टू फील्ड इधर खींच रहा है सर, तो एक्सटर्नल टॉर्क हमें अपोजिट साइड में लगाना है. तो अपोजिट साइड में लगा रहे तो फिर सम वर्क इज डन. वर्क इज डन टू रोटेट दिस डायपोल. तो स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा. तो वर्क डन टू रोटेट, वर्क डन dw to rotate
to rotate the dipole by through small angular displacement d theta by external torque दिख रहा है कि यहाँ से बाय एक्सटर्नल टॉर्क। ओके, अभी एक्सटर्नल टॉर्क से जो वर्क है वो लिखते हैं। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, ये स्क्रीन पास करके आप लिख लो, ठीक है। तो वर्क डन क्या आने वाला है फिर, वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है वर्क डन, जैसे लीनियर मोशन है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या रोटेशनल तो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, बट टोटल वर्क डन, now total work done to displace या फिर to rotate, total work done to rotate the dipole from theta 0 to theta is integration dw integration torque d theta, but we know the torque equal to P e sin theta d theta. Apply the limit theta 0 to theta 0 to theta. So these are the limits. अब लिमिट दिख रहा है क्या वीडियो में, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दिख रहा है। So this is the work done. Now let us take integration. Dipole moment constant, E constant. The integration of this. Integration of sin theta d theta. So theta 0 to theta. Okay. What is the integration of sin theta? Integration of sin theta is minus cos theta. Limit theta 0 to theta. Take minus sign outside. और क्या लिखना बाकी है, P बाकी लिखना है यहाँ पे। सो ये यहाँ पे बाकी रह गया P इंटू ई, माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट बाद में अप्लाई करो। कॉस थीटा के लिए इनिशियल एंगल थीटा 0, फाइनल एंगल थीटा, तो माइनस P इंटू ई, अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 0। तो माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर एब्जॉर्ब कर देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, तो P इंटू ई कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया वर्क डन। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। Therefore electric potential energy capital U equal to this work done W है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसे रब करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्क्रीन पास करके पहले लिखता हूँ। तो आगे फॉर्मूला बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन जैसे अभी हमने देखा P E
कॉस ऑफ क्या आ रहा है थीटा 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब इसमें स्पेशल केस कंसिडर करते हैं। जीरो पोटेंशियल एनर्जी हम ग्रेविटी की बात जब करते हैं, जैसे ये वाला, ये ग्राउंड सरफेस, ऑब्जेक्ट इज रेज अप टू द हाइट h, हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो मतलब रेफरेंस के तौर पे इससे यहाँ पे मैक्सिमम जब फोर्स होता है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेते हैं। ग्राउंड सरफेस पे रेफरेंस वैल्यू पोटेंशियल की हम 0 ले रहे हैं। जब हम इससे एक्चुअली गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसी को हम जब पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, स्मॉल हाइट से बॉडी को रेज करते हैं, हम बोल रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब रेफरेंस वैल्यू 0 यहाँ पे कंसिडर किए सरफेस पे, लेकिन सरफेस पे फोर्स क्या है मैक्सिमम। उसी तरह से टॉर्क मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री डायपोल मोमेंट वो जो एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब 90 डिग्री एंगल बना रहा है तब टॉर्क मैक्सिमम है, वो 0 वैल्यू कंसिडर करना है पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए रेफरेंस के तौर पे 90 डिग्री है इनिशियल एंगल थीटा 0, तब पोटेंशियल एनर्जी हम लेते हैं 0, ठीक है। तो इफ इनिशियली dipole is oriented perpendicular to electric field E, then theta 0 equal to 90 degree. Therefore, potential energy U is equal to PE cos 90 minus cos theta, cos 90 minus cos theta। तो U इक्वल टू P इंटू E cos 90 0 0 माइनस, अभी न्यू ओरिएंटेशन, इनिशियल हम थीटा मान ले, उसके बाद कुछ भी एंगल थीटा कंसीडर करो, नया ओरिएंटेशन थीटा, तो फॉर्मूला बन रहा है माइनस PE cos थीटा, ठीक है। तो क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस P डॉट E बन रहा है, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके डिफरेंट केसेस कंसिडर करना है, स्पेशल केसेस। द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन indicates that potential energy is stored due to restoring torque by the electric field. Now let us consider different cases, special cases. अब इसके लिए स्पेशल केसेस कंसिडर करते हैं। नंबर 1, position of stable equilibrium। मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी होती है नहीं, थीटा इक्वल टू 0,
cos थीटा बन जाएगा cos 0। cos 0 क्या होता है 1। therefore पोटेंशियल एनर्जी, अब इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, therefore by equation 1 पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस P इंटू ई इंटू 1, दैट मीन्स माइनस P। ये क्या है, ये मिनिमम, इट इज मिनिमम, ये मिनिमम है। इट इज मिनिमम, therefore U मिनिमम इक्वल टू माइनस P। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is parallel to the external field. So thus hence potential energy is minimum when electric dipole moment is parallel to uniform electric field. And this is the position of stable equilibrium. This is the position of stable equilibrium. ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन। ओके, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम मैकेनिक्स में पढ़े आप लोग, माइनस सीधी पोटेंशियल एनर्जी है तो वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, लेकिन किसकी, डायपोल की। यहाँ पे हम एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। A dipole is minimum when its electric dipole moment, when its electric moment, when its dipole moment is parallel to uniform electric field. Okay, अब पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी कंसीडर करते हैं। नंबर 2, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। So let us run this. तो जीरो एनर्जी के लिए if theta equal to 90 degree, cos 90 here, therefore by equation 1 फॉर्मूला है अपना माइनस पी कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, माइनस पी कॉस 90, ये बन गया 0। potential energy, this is the condition of energy 0. So potential energy 0 when dipole is held perpendicular to electric field. So therefore potential energy of dipole is 0 when its dipole moment, डायपोल बोला, डायपोल मोमेंट
is perpendicular to external uniform electric field. ओके, ये कंडीशन बन गई जीरो एनर्जी की। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नंबर 3, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। जैसे आपने मैकेनिक्स में पढ़ा है, ऐसा स्फीयर है, उसके टॉप पे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, फिर से वो रिटर्न नहीं आ रहा है, वो हमेशा यहाँ से चला जाने वाला। तो ये इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस, नो एनी टेंडेंसी टू रिटर्न। लेकिन इस पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, फोर्स जीरो है। तो उसी तरह से इधर भी ये इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, लेकिन अनस्टेबल के लिए देखो हाइट है कुछ, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल की पहली कंडीशन होगी, अनस्टेबल इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos थीटा क्या बनेगा? cos 180। cos 180 क्या होता है? -1। Therefore, by equation 1, potential energy U क्या होता है? फॉर्मूला -p cos थीटा, थीटा क्या फिर 180, cos 180 -1। ये क्या बन जाएगा? P इंटू ई, दिस इज मैक्सिमम। ये क्या है? इट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब क्या? फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम। देयरफॉर potential max equal to P. So thus potential energy is maximum when dipole moment is anti-parallel. So hence electric potential energy of a dipole is maximum when its dipole moment is anti-parallel to electric field. Electric field E. This is stable equilibrium. इसे बोलते हैं stable equilibrium. Okay, these are the different possible conditions. ठीक है, ये क्या है? Electric potential energy of a dipole is maximum when its dipole moment is anti-parallel. Anti-parallel मतलब ये ऐसा है। अब ये फील्ड की डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट इस तरह से रखा है हमने, ठीक है। एक्सटर्नल जो कोई सोर्स है फील्ड प्रोड्यूस करने वाला, उसकी इधर पॉजिटिव प्लेट होने वाली, इधर नेगेटिव प्लेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब डायपोल मोमेंट इस तरह से रखा है, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, दोनों आ गए एक दूसरे का अपोजिट, मतलब एंटी पैरेलल। तब क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, ये आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया मतलब मैक्सिमम।
तो पोटेंशियल पॉजिटिव आ गई, मैक्सिमम है, तो उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तब एंगल क्या है दोनों में 180। ठीक है, तो ये इस तरह से कंडीशंस बन रही है, तीन स्पेशल केसेस। ठीक है।